پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ العلم تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 17، اور الحمدللہ بڑھتے بڑھتے یہ اب 6th ایپیسوڈ پر، 6ٹھی قسط پر پہنچ چکا ہے۔ 5 ٹیمیں کوالیفائی ہو چکی ہیں۔ آج مقابلہ بہت خوبصورت ہونے کی امید ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سوات سے ہمارے اسلامی بھائی پہاڑوں سے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور داتا حضور کے شہر سے جو ٹیم ہے وہ موجود ہے۔ تو لاہور اور سوات کے درمیان مقابلہ ہے۔ کل ہم نے ایک اپسیٹ دیکھا کہ بلوچستان کی ٹیم اسلام آباد سے آگے بڑھ گئی، تو کیا سوات والے لاہور سے آگے بڑھیں گے یا لاہور والے اگلی جو ہے وہ سیٹ اپنی کنفرم کریں گے؟ ناظرین، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، علم دین سیکھنے کی نیت سے ہمارے ساتھ شامل رہیے، کالز کرتے رہیے، وقتاً فوقتاً آپ کی کالز بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ یاد رہے ہم آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، اس سوال کے جواب پر قرآن اندازی بھی کرتے ہیں، اور اس کا تحفہ گھر بیٹھے ناظرین کو بھی دیتے ہیں، اسٹوڈیو میں موجود حاضرین کو بھی دیتے ہیں۔ تو سب ریڈی ہو جائیں، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے اور تحائف ہوں گے۔ وقت ہوا ہے کہ دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلائیں گے۔ خیبر پختونخوا اور لاہور کے اسلامی بھائی، سوات اور لاہور کے اسلامی بھائی تشریف لائیں۔ جستجو ہے دین کا پیغام یا رب عام ہو، پرچموں میں سب سے اونچا پرچم اسلام۔ ماشاءاللہ جناب، وقت ہوا ہے ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل جو مقابلہ ہوا تھا اس کے نتیجہ کیا نکلا، اس کے کچھ مناظر آئیے دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش۔ کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بلاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 33 نمبر ہے استا محمد، 31 نمبر ہے اسلام آباد والوں کے، 2 نمبر سے استا محمد والے آگے ہیں۔ اب دونوں آخری اسلامی بھائیوں پر اپنی دونوں ٹیموں کی ذمہ داری ہے۔ جمرات یعنی شیطانوں پر کنکریاں مارنے کو سعی کہتے ہیں۔ غلط۔ سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں، جلدی کریں۔ نور والا آیا ہے، کلام مولانا حسن ندا خان صاحب کا ہے۔ غلط۔ جنت البقیع مکے میں ہے۔ غلط۔ آپس میں ملاقات کے وقت گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھنا یہ ہے کیا کوئی غلطی کی ہے۔ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے۔ بلوچستان والوں نے کمال کر دیا ہے ناظرین، آج بلوچستان مقابلہ جیت گئے ہیں۔ اسلام آباد والوں کو پھر تیاری کر کے آنا ہے، ایک موقع ملے گا۔ بلوچستان والے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ ماشاءاللہ کل ہم نے دیکھا بلوچستان کے اسلامی بھائی اوستا محمد سے آئے اور اسلام آباد جیسی ٹیم کو پیچھے چھوڑا۔ اب دیکھنا ہے سوات یا لاہور۔ آئیے ناظرین سوات والوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں، کیا نام ہے، کیا مصروفیات ہیں، اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہ حسین ہے، اور میرے والد صاحب کا نام محمد صبور ہے، اور میں جامعہ قادریہ مردان سے فراغت ہوئی ہے میری، ماشاءاللہ، اور ابھی سوات میں ہی امامت خطابت کے ماشاءاللہ خدمات۔ جامعہ قادریہ سے تعلق بھی ہے، امامت بھی کرتے ہیں۔ کیسے ذہنی آزمائش میں آنے کا آپ کا ذہن بنا؟ یہ ہمارے ساتھی ہیں مدین سوات کے، تو وہ پچھلے سال بھی آئے تھے یہاں مقابلے میں، انہوں نے شرکت کی تھی، تو انہوں نے ذہن بنایا۔ تو کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعمت اللہ ہے، اور میرا والد محترم کا نام عبدالرزاق ہے۔ میں سوات کے علاقے میں اندم سے تعلق رکھتا ہوں، اور ابھی میں مدرسے کا طالب العلم پڑھتا ہوں۔
कौन से मदरसे के तालिब इल्म है? ये मर्दान के करीब है, जामिया इस्लामिया मुहम्मदिया नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा कहते हैं आपको भी माशाल्लाह जी। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रेहान खान और वालिद का नाम आलिम शेर है। मैं दीर के रहने वाले हूँ। क्या बात है, और क्या करते हैं, मसरूफियात क्या है? पढ़ाती हूँ, आप पढ़ाते हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाते हैं? ऊला में पढ़ते हूँ। पढ़ते हैं, अच्छा ऊला में पढ़ते हैं। चले ये पढ़ाते पढ़ते थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहेगा, स्वाद क्या है माशाल्लाह। आइए नाजरीन सुनते हैं, देखते हैं कि ये हमारी जो टीम सेलेक्ट हुई है वो कैसे हुई है, उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ आया, दिल में खजाना हाथ आया। ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत शहर सवात में ऑडिशन होगा। आइए आपको लिए चलते हैं सवात ऑडिशन की तरफ। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। सूरत जीन में जिन्नात का जिक्र है, उनकी तादाद कितनी थी? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरह जिन की तफसीर में बताते हैं कि वो 9 जिन थे। खुदा बंदे आलम का दीदार होगा, नबी की बदौलत बरोज़ क़यामत खुदावंद आलम का दीदार होगा। हमारा नसीब भी बेदार होगा, जो देखेंगे हम सब गुम्बत नबी का, हमारा नसीब भी बेदार होगा। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन अब आइए देखते हैं, लाहौर की टीम से तारुफ भी हासिल करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उसामा अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम ज़फ़र हयात अत्तारी है। बेसिकली मैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से हूँ, लेकिन मैं लाहौर पढ़ता हूँ। आई रिसेंटली कम्प्लीटेड FSc प्री मेडिकल, और इसके साथ साथ मैं नाइट्स जामिअतुल मदीना फैज़ानी मदीना जौहर टाउन में 3rd ईयर का तालिब इल्म भी हूँ। माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं आपको जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम करामत अली है, और मैं जामिअतुल मदीना अपर माल रोड लाहौर का दर्जा 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ फूल नगर के गाँव गुम्मन के से। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमैर उमर अत्तारी, मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद उमर दराज कादरी है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ शहर लाहौर से, और मैं जामिअतुल मदीना मुबारक टाउन में 5th ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। मरकज़ुल औलिया लाहौर जो कि कई बार फाइनल में टीम भी पहुंची है, आगे भी बढ़े हैं। इस बार देखना होगा लाहौर की टीम का सफर कहां तक रहता है। कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं लाहौर के ऑडिशन के हवाले से। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, दिल में खजाना हाथ आया। ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन जारी और सारी है दाता साहब के शहर लाहौर का। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सुरमा इस्तेमाल फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जुम्मे अदा फरमाए? नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस मद सुरमे को शरफ बख्शते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में 500 जुमे अदा फरमाए। इंस का उन्स उसी से है, जान की वही जान है। एक उन्हीं की रुख की रोशनी चैन है, तो जहान की इंस का उन्स उन्हीं से है, जान की वो ही जान है। बता तो इससे तुम्हारा ने क्या निहाल किया, तो जिसके वास्ते छोड़ाया तैबा सा महबूब, बता तो इससे तुम्हारा ने क्या
कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाहौर की टीम कैसे पहुंची आपने मनाजिर देखे। नाज़रीन, वक्त हुआ है, आपसे एक सवाल हमने किया था प्रोग्राम के आखिर में, अब उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। सवाल जो किया गया था कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान को कितने दिन में पैदा किया है, तो दुरुस्त जवाब है 6 दिन में। बिनते शाकिर तारिया तरबेला गाजी, बिनते अली मोहम्मद शाह अकीक, बिनते अब्दुल कदीर तारिया लाला मूसा, बिनते सज्जाद हुसैन बिन कासिम कराची, गुलाम हुसैन तारी मीरपुर साकरो, रियासत अली पत्तो की, बिनते इफ्तिखार हुसैन कोट सब्जल, मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी आरिफ वाला पंजाब, जुहेब रज़ा मियाँ वाली शाहबान अत्तारी मियाँ चन्नू, गुलाम मुस्तफ़ा फैसलाबाद, बिनते संजर खान जैकब आबाद। आज जिस खुश नसीब का कुर्रान निकला है बिनते इफ्तिखार हुसैन कोट सब्जल, ये अपने महरम के जरिए राब्ता करें, इंशाल्लाह तोहफा पहुंचाया जाएगा। माशाल्लाह। यहाँ मैं जब आतिफ भाई को हम दिखा रहे थे कुरानदाजी में, तो साथ एक बड़ा प्यारा सा बॉक्स मिस्की इतर का नज़र आ रहा था और मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है। नाजरीन, बहुत प्यारे इतरियात हैं और ये सारे इतरियात मकतबतुल मदीना पर आपको मिल जाएंगे। और याद रहे कि मकतबतुल मदीना ये दावत इस्लामी का इदारा है, इसका नफ़ा, इसका नुकसान, इसका सब कुछ दावत इस्लामी का है। जब इतर ख़रीदने ही हैं, बल्कि अब तो परफ्यूम भी उन्होंने निकाल दिए हैं, तो अपनी किताबों के साथ साथ मकतबतुल मदीना से आप ये इतर भी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर उम्मीद है कि नंबर्स ऑर्डर के लिए आ जाएंगे, तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं। इनके बाकायदा बॉक्सेस भी हैं, तो ये भी आप हासिल कीजिए। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है आपसे आज का सवाल करने का, जो आपने मैसेज के जरिए जवाब देना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जनाब ये तो पहली बार याद आएगा कि ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं था, तो फिर नाम कुछ और था। जी हाँ, नाम कुछ और है, वो जवाब दीजिए। और इसी तरह सवाल एक आपसे क्विज एप्लीकेशन पर किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने ज़ैनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। और उसमें सवाल ये है कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इन चार में से एक सही जवाब है, आप वो जवाब दीजिएगा और अपनी आईडी का नंबर भी सेव रखिएगा। आपको बताते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, 1500वां जश्न विलादत, फ़िक़्ह हनफी और उसके दलाइल तलाश कीजिए, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। पहले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे स्वात वालों से। हर सवाल के जवाब में 2 नंबर मिलेंगे, आपस में मशवरा करके जवाब दीजिएगा। मगर याद रखिएगा आपके पास 25 सेकंड होंगे, अगर वो 25 सेकंड गुजर गए फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जन्नती खैमा कैसा होगा? स्वात वालों से सवाल है। अल्लाह हमें जन्नती खैमे में रहना नसीब फरमाए, दीदार नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का भी इस बारे में फरमाने आलिशान है, जन्नती खेमा कोकले मोती का है और इसका लंबाई आसमान में 60 गज का है और इसके हर कोने में मोमिन की घरवाली होते हैं जो दूसरे नहीं देख सकेंगी। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है, जन्नती खैमा खोखले मोती का है, उसकी लंबाई आसमान में 60 मील होगी, उसके हर कोने में मोमिन के घर वाले होंगे जिनको दूसरे नहीं देख सकेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शुक्र की कितनी अक़साम बयान फरमाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम कुशैरी ने रिसाला कुशैरिया में शुक्र की 3 अक़साम बयान फरमाई। ज़बान का शुक्र ये है कि इज़्ज़ो इनकिसारी करते हुए अल्लाह पाक की नेमत का एतराफ़ करना, और उसके बाद जिस्म पूरे बदन का शुक्र ये है कि खिदमत और फरमाबरदारी से मुत्तसिफ होना, और दिल का शुक्र ये है कि अल्लाह पाक की हुर्मत की दायमी पासदारी के साथ उसकी बारगाह में हमेशा हाजिर रहना। सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन का क्या मतलब है? क्या प्यारा सवाल है। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन का क्या मतलब है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का तमाम अंबिया किराम और इसकी उम्मत और क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों से अफजल व आला है। सैयदुल मुरसलीन वल आखिरीन का यही माना है। और सैयद यानी सरदार वो होता है जो मर्तबे में दूसरों से अफजल व आला बुलंद व बाला हो। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया किराम उनकी उम्मतों और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों से अफजल व आला हैं। और सैयद यानी सरदार वो होता है जो मर्तबे में दूसरों से अफजल व आला और बुलंद व बाला हो। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह पाक को, अल्लाह करीम को देखने के हवाले से मखलूक खुदा की अक़साम बताए। हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक को देखने के हवाले से मखलूक खुदा की तीन अक़साम हैं। एक वो है जो अल्लाह पाक का दीदार की तलब तो रखते हैं लेकिन उसकी अज़मत और किबरियाई से यकसर गाफिल है। और एक वो हैं जो अल्लाह पाक का दीदार, अल्लाह पाक की अज़मत और किबरियाई से तो वाकिफ़ हैं लेकिन अल्लाह पाक के दीदार का जुरत करते हुए अल्लाह पाक की दीदार की ख्वाहिश करते हैं। और एक वो हैं जो अल्लाह पाक की हैबत और अल्लाह पाक की अज़मत और किबरियाई को जानते हुए क़तअन रोयत बारी ताला का तकाजा नहीं करते। और कभी कौल ये है कि ये आखिरी किस्म के लोग सबसे अफजल व आला हैं और यही बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक के दीदार के सबसे ज्यादा हकदार होंगे। क्या बात है। अल्लाह करीम क़यामत के दिन हमें अपना दीदार नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत में जन्नतियों को जो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा ना, वहां अल्लाह करीम का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कामिल इत्तिबा की कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की चार सूरतें हैं। नंबर एक, अफ़आल में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा, अफ़आल में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा और अक़ाइद में इत्तिबा। अक़ाइद में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा और अफ़आल में इत्तिबा, यानी फॉलो करना है इन चारों चीजों में, अक़ाइद में, अक़वाल में, अखलाक में और अफ़आल में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा नेमतुल्लाह भाई, आपसे गुजारिश ये कि माशाल्लाह मैंने देखा आप जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा मशवरा कर लिया करें, ठीक है ना। आप फौरन जवाब दे देते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान से गलती हो सकती है, तो आप आपस में मशवरा करके जवाब देंगे तो गलती की गुंजाइश और कम हो जाएगी। अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से क्या अहद लिया? अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया कराम से ये अहद लिया कि अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना पाएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ साथ उनकी हिमायत और नुसरत भी करें। जनाब अल्लाह पाक ने दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजलो एहसान फरमाते हुए उनसे ये अहद लिया था कि अगर वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना पाए तो उन पर ईमान लाने के साथ साथ उनकी हिमायत और नुसरत भी करे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये तो सारे सवाल हो गए। अब थोड़ा सा सिलेबस से हट के सवाल होगा और फिर उसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे। पहली बारी हमारी स्वात वालों की है, इन्हें टॉपिक दिखाए जाए कि किस टॉपिक के तहत ये सवाल करेंगे। कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका, सहाबा किराम, औलिया किराम या जनरल नॉलेज? कुरान पाक। कुरान पाक से मुतालिक सवाल करना चाहते हैं। लगता है हमें ये 6 टॉपिक भी चेंज करने पड़ेंगे अब।
आगे आगे देखिए होता है क्या। जनाब, सूरह मरियम कौन से पारे में है? हाफिज साहब होंगे तो जल्दी बता देंगे, वरना आप चाहें तो मदद भी ले सकते हैं, या ऑप्शन हम देते हैं आपको हाजरीन में से मदद करने का। सूरह मरियम कौन से पारे में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम 16वें सिपारे में है। आपका कहना है 16वें सिपारे में है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लाहौर वालों की बारी है। कुरान पाक। कुरान पाक, चले जनाब, कुरान पाक का सवाल। सूरह यासीन कहां नाजिल हुई? इसमें सूरह यासीन का पारा नहीं पूछा गया है, कहां नाजिल हुई। अब इसमें आप जवाब देंगे, शहर का नाम बताएंगे, चाहें तो आप मदद भी ले सकते हैं। कोई है मददगार भाई इस टॉपिक के जवाब में? अच्छा, एक हाथ तो उठाया है। मददगार के कौन से नंबर कटने हैं? वैसे हाथ उठा दिया होगा। चले जनाब, मदद लेंगे। मदद लेंगे। किससे लेंगे? कौन अच्छा लग रहा है आपको? ब्राउन इमाम मशीन वाले, ये वाले चीफ वाले। अच्छा, वो वाले नहीं, वो आगे ब्लू इमामे वाले बैठे। ये वाले जी भाई, खड़े हो जाए भाई। सूरह यासीन कहाँ नाजिल हुई? सूरह यासीन मक्का शरीफ में नाजिल हुई। मक्के शरीफ में, मक्की सूरत है, ये बता रहे हैं। जी आप क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक कह रही है। चले जनाब, आपने भी कहा मक्का शरीफ, इन्होंने भी कहा मक्का शरीफ, और मेरे पास जो जवाब लिखा हुआ है ना जनाब, वो भी मक्का शरीफ ही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी स्वात वालों की है। बताइए क्या टॉपिक लेंगे? अब कुरान पाक आप सेलेक्ट कर चुके हैं, अब कोई और टॉपिक लेना होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक सवाल होगा। जनाब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कब निकाह फरमाया? 1 हिजरी, 3 हिजरी या 7 हिजरी? दिस इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन। नबी पाक अलैहिस्सलाम से, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत हफ्सा से निकाह किस सने हिजरी में फरमाया? जल्दी करेंगे, टाइम आपका खत्म हो गया है। 1 हिजरी। पूरा टाइम के अंदर जवाब दिया करें जनाब। बताइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? 3 हिजरी था। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। अब बारी है लाहौर वालों की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम, सवाल क्या होगा? सवाल थोड़े से मुश्किल करते जाएंगे हम। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहर का नाम क्या था? हज़रत अबुल आस बिन अल रबी, हज़रत उस्मान या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? नंबर 1 हज़रत अबुल आस बिन अल रबी। जी बताइए जनाब, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, यहां तो सवाल पूरे हो गए हैं। स्वात वालों ने दिल छोटा नहीं करना, अभी मुकाबला बहुत आगे बाकी है। यहां सवाल करेंगे, मगर उससे पहले 1 या 2 कॉल शामिल करते हैं। जी, मक्का मुकर्रमा की पुरकैफ बाज़ोक फ़दाओं से हाजी अब्दुल हबीब अतारी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के से सलाम आया, सुभान अल्लाह। जी, उबैद रज़ा तारी बात कर रहा हूँ। माशा अल्लाह, ज़हनी आजमाइश फिर से इल्म दीन की शमा को हमारे दिलों में रोशन कर रहा है। अल्लाह पाक ज़हनी आजमाइश की सारी टीम को बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह सारी टीम में हाज़रीन, सामीन, मदनी चैनल देखने वाले सारे मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपका सदका हम सबको बार बार हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मक्के से इतनी प्यारी आपने हमें दुआएं दी, माशाल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह, आज मेरा बेटा हाफिज मोहम्मद उमैर लाहौर की टीम में सिलेक्ट होकर ज़हनी आजमाइश के मंच पर पहुंच चुका है। अपने बेटे के लिए और ज़हनी आजमाइश की सारी टीम के लिए दुआ को हूँ। अल्लाह सारी टीम को, खुसूसन अब्दुल हबीब भाई को बरकतें अता फरमाए। सारे बच्चे अपने हैं, अल्लाह सब बच्चों को कामयाबियां अता फरमाए और सब बच्चों को ज़हनी आजमाइश के तवस्सुल से मदीना पाक की बार बार हाज़िरी अता फरमाए।
واہ بھائی واہ، عمیر بھائی آپ کے والد صاحب نے کال بڑی پیاری کی، سارے بچے اپنے، واقعی دعا سب کے لیے کرنی چاہیے اور اللہ سب کو کامیابی دے، ہم سب کو مدینے کی حاضری مل کر عطا فرمائے۔ چلیں جناب، یہ کالیں بھی ہو گئی، سوال کیجیے عاطف بھائی۔ سوال تھوڑا دلچسپ ہے اور جو درست جواب دے گا اس کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے خزینہ رحمت، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر مشتمل جو ہے یہ کتاب ہے، یہ انشاءاللہ یہ تحفے میں دیں گے۔ سوال ہے کہ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحیم ہے، میں سرجانی ٹاؤن نیو کراچی سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ سریانی زبان میں، جی جناب۔ ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ بڑا یونیک سوال تھا، کہیں سنا تھا آپ نے، پڑھا آپ نے؟ جامعۃ المدینہ۔ واہ بھائی واہ، دیکھیں جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں جبھی تو ایسا پیارا جواب دیا، ماشاءاللہ۔ تحفہ دیں بھائی نے۔ چلے انشاءاللہ یہ کتاب انہیں دے رہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال کیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مشہور مؤذن رسول کا نام بتائیے۔ مشہور مؤذن رسول کا نام، یہ کسی بچے سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معین الدین ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب جواب درست ہے اور یہ انشاءاللہ عطر شریف انہیں دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا چلے، ایک اور مؤذن رسول بھی ہیں، ایسے تو اور بھی ہیں لیکن ایک مؤذن رسول جو کہ نابینا تھے، ان کا نام کون بتائے گا؟ ناظرین نارملی مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کا ہی نام لیتے ہیں، ہم نے کہا کہ دوسرے صحابی کا نام بھی پتہ چلے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام صابر اتاری ہے اور میں فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ جی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا جواب دیا، جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان کو عجائب القرآن کتاب انشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ آئیے ناظرین اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سوات والوں کے 8 نمبر ہیں، لاہور والوں کے 10 نمبر ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ جناب سوال کریں گے سوات والوں سے، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں، تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام،
آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. جواب درست دے دیا ہے. آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام، آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. بات کی ہمت نہیں پڑتی ادب کا ہے مقام. بات کی ہمت نہیں پڑتی ادب کا ہے مقام، دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام، دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. جواب درست دے دیا ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. جواب درست دے دیا ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. دو سوزے بلال آقا ملے درد رضا سا. سرکار عطا عشق ویسے قرانی ہو، سار عطا عشق ویسے کرنی ہو. جواب درست دے دیا ہے. سے بلال آقا ملے درد رضا سا، دو سو سے بلال آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے قرانی ہو. روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر. روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. کب تک میں پھروں در در مرنے بھی دو اب سرور. دہلیز پہ سر رکھ کر سرکار مدینے میں، دہلیز پہ سر رکھ کر سرکار مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. کب تک میں پھروں در در مرنے بھی تو اب سرور، دہلیز پہ سرکار مدینے میں، دہلیز پہ سر رکھ کر سرکار مدینے ہم مٹتے ہیں جہاں کے آنا مدینے، روزے کے قریب گر جا میں غش کھا کر، روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر، ہو جائے تمہارا پھر دیدار، ہاں ہو جائے تمہارا پھر دیدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت کلام ہے امیر اہل سنت کا. مٹتے ہیں جہاں بھر کے
आलाम मदीने में बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। अब शेर दिखाया जाएगा मगर उसको आपने एग्जैक्टली लफ्ज ब लफ्ज हमें बताना है। बताइए कौन सा शेर है स्वात वालों के लिए। मैं क्यों गैर की ठोकरे खाने जाऊं, दर से तेरे अपना गुजारा करूं मैं, तेरे गम से अपना गुजारा करूं मैं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। इन तीनों में से कोई एक लाइन दुरुस्त है। और याद रहे नाजरीन, ये शेर इनके सिलेबस में नहीं होता, हम सिलेबस से हट के कलाम लाते हैं ताकि थोड़ा सा मजीद मुश्किल हो जाए। जी तीसरा मिसरा सही है। तीसरा मिसरा सही है। तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। स्वात वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मैं क्यों घर की ठोकरें खाने जाऊं, मैं क्यों घर की ठोकरें खाने जाऊं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं, दिलो जाने 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 सारा करूं। लाहौर वालों की बारी है, दिखाइए शेर। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी। वेरी ट्रिकी जनाब। दूसरा लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं। अच्छा, अगर मुझसे भी पूछा जाता ना तो मैं भी यही जवाब देता जो इन्होंने दिया है, लेकिन आज मेरी भी तस्हीह हुई है, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। यानी पहला मिसरा जो था ये दुरुस्त था और आपसे गलती हो गई है जनाब। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। गलती हुई है, शेर तर्ज में सुना दीजिए। निगाहे लुत्फ के यहाँ इस्लामी भाइयों की है और देखें कौन शेर सुनाता है। मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, पहली लाइन आपने सुनानी है? जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मोहम्मद वबरकातुहू। अरसलान अत्तारी औरंगी टाउन से हाजिर हुआ हूँ। जी पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को हाय खबर ना हाय, हो। ऐसे पुल से गुजार दीजिए, ऐसे हल्के फुल्के होके हुजूर गुजर जाएं कि जरूरत जिब्रील पर भी बिछाएं तो उनके पर को भी पता ना चले। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाअल्लाह मुतबर्रक पानियों का मजमुआ। सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछा तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इश्तियाक अहमद अत्तारी है, मैं फैसलाबाद से हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब मरहबा। शेर पूरा। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये, कौन बनाए बनाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बनी बनी हम आप बिगाड़े,
सवाल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं जी। मोहम्मद गफरान रजा तारी अर्ज कर रहा हूँ मदीना सवाद से। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार सवाद की टीम ज़हनी आजमाइश में आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सवाद बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामी भाई इज्तिमाई तौर पर ये सिलसिला जो है वो देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सवाद का एडिशन भी जो है वो तारीख और यादगार हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। चले जनाब, बड़ी हमें भी खुशी हो रही है कि स्वात के टीम को सपोर्ट भी कर रहे लोग। खैबर पख्तूनख्वा में इज्तिमाई तौर पर सिलसिला देखा जा रहा है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। और हमारी एक नीयत ये भी होती है मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ जामियात को, मुख्तलिफ शोबाजात को इन्वॉल्व करने का। उम्मीद है कि जो ये सुन्नी जामियात से हमारे दोनों भाई नेमतुल्लाह भाई और शाह हुसैन भाई आए, आपके जामियात में भी देखा जा रहा होगा, तलबा असातिज़ा में भी खुशी की लहर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। एक और कॉल दीजिएगा। मैं मोहम्मद इजाज चिश्ती अतारी, जिला अटक तहसील पिंडी के मदरसतुल मदीना बालिगान। माशाअल्लाह हाजी अब्दुल हबीब भाई हमारे रुकनी शूरा साहब का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बड़ी शिद्दत से इंतजार था। 17 सीजन चलेगा, देखेंगे इंशाल्लाह। अभी देख रहे हैं, मेरा बच्चा है मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन 12 साल का, वो भी बड़े शौक से देखता है। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। अल्लाह आपको आपके पूरे घराने को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अच्छा जनाब, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जनाब? मुकाबले ने फिर पलटा खाया है। खैबर पख्तूनख्वा स्वात वाले पीछे थे मगर अब दोबारा बराबर हो गए हैं। दोनों टीमों के 18-18 नंबर है। अगला सेगमेंट है 1500वां जश्न विलादत। जनाब, दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई आएंगे। पहले स्वात वालों की बारी है, तशरीफ लाइए। 15 बॉक्सेस में से एक बॉक्स आपने खोलना है और उसमें से जो आपके लिए वहां निकलेगा, क्या टॉपिक है उसमें 15 नाम बताने होंगे। जनाब कौन सा बॉक्स खोलेंगे? 5वां नंबर खोल रहे हैं जनाब। बॉक्स में से निकालिए, क्या है इसमें लिखा हुआ? मदनी चैनल के 15 प्रोग्राम के नाम। मदनी चैनल के 15 प्रोग्राम के नाम। ये सुन्नी जामियात वालों के लिए मुश्किल हो सकता है। वक्त शुरू होता है अब। मदनी मुज़ाकरा, ज़हनी आजमाइश, बातें हैं कुछ ख़ास और खुले आंख सल्ले आला कहते कहते और आराम से भी टाइम है आपके पास, गौर कीजिए। जनाब मशवरा नहीं कर सकते। याद किया था जी? याद किया था, भूल गए या याद नहीं किया था? ये वाला टॉपिक हाँ याद नहीं कर सके। चले और आएंगे याद। अभी है 20 सेकंड, गौर कर ले। 4 आपने बताए, आप 7 से ज्यादा बता देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। मदनी चले, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। दूसरे भाई आएंगे इंशाल्लाह। लाहौर के इस्लामी भाई आएंगे और इसमें से कोई बॉक्स खोलेंगे और देखते हैं कि उनके नसीब में क्या टॉपिक आता है जी। 4 नंबर जी, क्या है? शोहदाए ओहद में से किसी 15 के नाम। होए होए, शोहदाए ओहद में से 15 के नाम। चले जनाब, वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना सलीम बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना मुसैयब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना साद बिन अशा रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना यहाँ भी 4 नाम हुए हैं अभी तक। शोहदाए ओहद के 15 नाम नॉर्मली आसान नहीं होते। 3-4 नाम तो बड़े मशहूर हैं जिनमें से अभी तक आपने 2 ही लिए हैं। हज़रत सैयदना यास बिन अदी रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना हज़रत सैयदना अनीस रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना औस बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना औस बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना साद बिन रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हो। टाइम आपका पूरा हो गया है। कितने नाम ले सकें? ये 8 लिए हैं। आपको 1 नंबर मिलेगा, अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। जनाब फिर बारी है खैबर पख्तूनख्वा के। अब दूसरे इस्लामी भाई आएंगे। नेमतुल्लाह भाई आ रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा इमामा है, कांधे पे प्यारी सी चादर है। अब देखें नेमतुल्लाह भाई क्या करते हैं। जनाब 3 नंबर खोल रहे हैं और उसके अंदर क्या है?
असहाब सुफ़ा की नाम। असहाब सुफ़ा के 15 नाम बताएंगे आप। आपकी वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाब सुफ़ा की नाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 9, 8, 9 तो हो गए मेरा ख्याल है। अभी है टाइम आपके पास, जल्दी पूरे कर लें। 11 हो गए। अच्छा माशाल्लाह, जल्दी करें। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हो चुका था। 11 आपने किए हैं। आप सबसे मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुहैब बिन सनान रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला का भूल गए, जो सबसे ज़्यादा मशहूर इन असहाब सुफ़ा में। लेकिन आज नाज़रीन एक और बात मुझे भी सीखने को मिली कि कितने बड़े बड़े जलील क़दर सहाबी असहाब सुफ़ा में थे। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत इन्होंने बताया हुज़ैफ़ा बिन यमान जो राज़दार रसूलुल्लाह थे। यानी आप सोचें कि असहाब सुफ़ा वो गरीब सहाबा थे जिनके पास रहने को घर नहीं होता था, पहनने को पूरे कपड़े नहीं होते थे, और उनको खाना नबी पाक की बारगाह से आता था। और ये इतने बड़े बड़े जलील कदर सहाबी थे। अल्लाह उनके मज़ारात पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन हम आपको एक ही नंबर दे सकेंगे। शाबाश माशाल्लाह। जनाब अब आइए लाहौर की टीम के इस्लामी भाई। इतना कुछ हमें भी सीखने को मिलता है माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के जरिए। जनाब 11 नंबर खोला इन्होंने, क्या है इसके पीछे? नमाज के 15 वाजिबात। नमाज के 15 वाजिबात बताएंगे जनाब। वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत के अलावा हर रकत में अल्हम्द शरीफ की किरात करना, हर फ़र्ज़ वाजिब का उसकी जगह होना, हर रकात में रुकू का एक ही मरतबा होना, हर रकात में सुजूद का 2 ही मरतबा होना, हर रकात में सुजूद का 2 ही मरतबा होना, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, और इमाम को जहरी नमाज में बुलंद आवाज़ से किरात करना और गैर जहरी में आहिस्ता आवाज़ से किरात करना, गैर जहरी में आहिस्ता आवाज़ से किरात करना। मेरा ख्याल है अभी 6-7 हुए हैं, शायद 6 हुए हैं। जल्दी 2 तो कर ले ताकि 1 नंबर मिल जाए आपको। तकबीर कुनूत कहना, दुआए कुनूत पढ़ना वितर में। 8 हो गए। वाजिबात हैं कितने? अमीर अहले सुन्नत ने 30 वाजिबात तहरीर 30 लिखे हैं और आपको 15 बताने हैं, और अभी तक आप टाइम आपका पूरा हो गया। कितने बताए इन्होंने? 8 बताए हैं, तो 1 नंबर मिलेगा आपको। चले जनाब, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। नाजरीन अब हम भी गौर करें कि हमें भी ये बातें मालूम है कि नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात होता क्या है कि 30 वाजिबात याद किए होते हैं, लेकिन जब लाइव प्रोग्राम हो, हाथ में माइक हो और घड़ी की टिक टिक चल रही हो, तो अच्छे भूल जाते हैं। तो ये ना समझा जाए कि ये मालूमात इनके पास नहीं होगी, लेकिन जाहिर है कि एक प्रेशर होता है। बहरहाल बहुत अच्छी काविश, बहुत अच्छी कोशिश। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक कॉल लेते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, रहमान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का बड़ा ही प्यारा सिलसिला बनाम ज़हनी आज़माइश सीज़न 17 अपनी धूम में मचा रहा है। और माशाल्लाह आज तो हमारे शहर लाहौर की टीम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने दुआओं से नवाजा। कॉल करके लोग ये कहते हैं कि अब्दुल हबीब अत्तारी का सिलसिला देखें। ये सिलसिला मदनी चैनल का है, दावत इस्लामी का है। इनकी मेहरबानी है मदनी चैनल वालों की, जो हमें करने का मौका दिया है। तो सिलसिला लाने की पूरी जो प्लानिंग होती है वो मदनी चैनल मजलिस की तरफ से होती है। आप हमारी मजलिस के लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 19 नंबर हैं मर्दान के, स्वात के और मदियन स्वात के, और 20 नंबर है लाहौर के। 1 नंबर से फिर लाहौर आगे बढ़ गया। ये कमाल का प्रोग्राम हो रहा है, हर सेगमेंट के बाद कोई एक टीम आगे बढ़ जाती है। अब सेगमेंट है, बड़ा प्यारा सेगमेंट है, फिक़े हनफी और उसके दलाइल। सवाल है स्वात वालों से, क्या टोपी या इमामा पर मसा करने से फर्ज पूरा हो जाएगा या नहीं? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान कीजिए।
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نزدیک ٹوپی یا امامہ پر مسح کرنے سے فرض پورا نہیں ہوتا بلکہ بالوں پر مسح کرنا ضروری ہے۔ احناف کا دلیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور سر کے اگلے حصے پر مسح کیا، یا یہ فرمایا کہ پانی سے پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا۔ یعنی نبی پاک نے امامہ اتار کر بالوں پر سر پر مسح کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بہتا ہوا خون وضو توڑ دیتا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک بہتا ہوا خون وضو توڑ دیتا ہے۔ دلیل حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بہنے والے خون پر وضو ہے۔ ہر بہ کر نکلنے والے خون پر وضو ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فجر کی سنت قبلیہ فرض کے بعد پڑھنا کیسا؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نزدیک جس شخص نے فجر کی سنت نہیں پڑھی ہو تو فجر نماز کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ احناف کا دلیل یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ سے سنا کہ اس میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، اور راوی فرماتے ہیں کہ مجھے ان سب میں سے محبوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اچھا، تو اب کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو فجر کی فرض اور بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ جب سورج طلوع ہو جائے تو قضا کے طور پر وہ سنت ادا کیجیے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد قضا کے طور پر پڑھے گا، یعنی 20 منٹ کے بعد۔ ناظرین، یہ بڑی پیاری ہم نے حدیث پاک سنی، میں ذرا دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابن عباس، ان سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے کئی صحابیوں سے سنا، جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، جو میرے لیے ان سب میں محبوب ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا فجر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی اور جماعت میں وہ شامل ہو گیا یا اس نے فرض پڑھ لیے، تو اب سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد وہ پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع یدین کرنا کیسا؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ نماز جنازہ میں تکبیرات میں رفع یدین کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک یہ موقف ہے کہ نماز جنازہ میں رفع یدین نہیں کیا جائے گا، فقط پہلی تکبیر میں ہاتھ کو اٹھایا جائے گا۔ دلیل سنن ترمذی کی جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، صرف پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدین فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیا۔ جی جناب، صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، باقی نماز جنازہ کی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا خوبصورت سلسلہ ہے، کیا خوبصورت سیگمنٹ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف قرآن و حدیث سے جان رہے ہیں اور فقہ حنفی کے دلائل جان رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلنا ہے، مگر ایک کال شامل کرتے ہیں۔ مسجد کے امام کی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ کتنا پیارا، ذہنی آزمائش سالوں سال اس کا انتظار رہتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خصوصی طور پر عبدالحبیب بھائی کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہم سب کو ایمان برافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اور مغفرت کی دعا فرما دیجیے عبدالحبیب بھائی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے۔ ناظرین، اب اگلا سیگمنٹ ہے، اس سے پہلے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جناب 23 نمبر ہیں سوات والوں کے، 24 نمبر ہیں لاہور والوں کے،
اگلا سیگمنٹ کچھ تلاش کرنا ہے. کیا تلاش کرنا ہے؟ کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہی یہی ہے, تلاش کیجیے. جناب سوات کے اسلامی بھائی آگے آئیں گے اور کچھ تلاش کریں گے اس بورڈ پر. مارکر آپ کے پاس ہوگا, 30 سیکنڈز ہوں گے آپ کے پاس اور آپ ہمیں تلاش کر کے بتائیں گے. جی جناب, پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آج تلاش کرنا ہے. یہ مارکر لیجئے گا, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا تلاش کرنا ہے, پھر آپ کا ٹائمر شروع ہو جائے گا. آج آپ نے ہمیں تلاش کر کے دینا ہے مزمل. 30 سیکنڈ کے اندر تلاش کیجئے. یعنی جناب انہوں نے تو تھوڑی دیر میں ہی جناب مزمل جو ہے تلاش کر لیا ہے اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے, جواب درست دے دیا ہے. بہت جلدی تلاش کر لیتے جناب. لاہور کے اسلامی بھائی آئیے. اچھا یہ لفظ جو آپ نے ابھی مکمل کروایا اس کا تلفظ کیا ہے؟ لوگ مزمل بولتے ہیں. اس کو مزمل پڑھیں گے کیونکہ تشدید ہے تو اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی. جی باری ہے لاہور والوں کی. لاہور والے آ جائیں اور یہ مارکر لیجئے اور اب تلاش کیجئے. اور آپ نے تلاش کرنا ہے فاتحہ. 30 سیکنڈز کے اندر فاتحہ. ذہنی آزمائش کی مجلس سے گزارش ہے کہ یہ جناب سیکنڈوں میں تلاش کر لیتے ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل کام کیجئے. بہت شکریہ, جواب درست دے دیا ہے. اب آ جائیں بھائی, پھر آ جائیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی اور لفظ توبہ تلاش کر کے دیں. توبہ. خیبر پختونخوا سوات والے جناب بڑی جلدی تلاش کر لیا ہے, جواب درست دے دیا ہے. سیدھے ہاتھ سے آ جائے بھائی, لاہور والے آ جائیں, آ جائیں. ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام محمد تلاش کر کے بتائیں. تھرٹی سیکنڈز ہیں آپ کے پاس, سکون سے تلاش کیجئے. جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب دیکھیں یہاں حاضرین میں سے کسی کو بلاتے ہیں. حاضرین میں سے کون آئیں گے؟ کوئی مدنی فیس دے کر آئیں تو کیا بات ہے مدینے کی. نیت کی ہے کہ میں انشاءاللہ داڑھی ایک مٹھی پوری کر لوں. پوری ایک مٹھی کریں گے. اب تک جو کٹوائی اس کی توبہ بھی کر لیں انشاءاللہ. کیا بات ہے. میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آئیے آئیے. ماشاءاللہ یہ بڑے پیارا آپ نے ہمیں تحفہ دیا. آپ کے لیے بھی یادگار رہے گا کہ آپ نے کب نیت کی تھی. ماشاءاللہ. چلیں یہ مارکر لیجئے اور آپ یاسین تلاش کر کے دیجئے. چلیں آپ کو سوال بھی آسان دے دیا. یاسین. یاسین جلدی کیجئے, آپ کے بعد 9 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ویسے تو 2 لفظ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ 2 لفظ ہی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. یا اور سین کو ڈھونڈ لینا بھائی. چلے میں ان کی مدد کر دیتا ہوں کیونکہ ڈھونڈ لیا, یہی ہے نا, یا اور سین. یاسین. چلیں جناب, داڑھی شریف مبارک ہو آپ کو, اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے. بہت شکریہ. کوئی تحفہ بھی پیش کرے بھائی. ماشاءاللہ غلاف کعبہ شریف کے دھاگے. اور کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب, ہمارا سیگمنٹ یہ کمپلیٹ ہوا. ہم ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت ہوا ہے ہم نعت خوانی بھی کریں گے اور نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے انشاءاللہ نیک عمل کا جائزہ لینے سے پہلے عبدالعبی بھائی آپ تو ماشاءاللہ یہاں پر تحفے بٹواتے رہتے ہیں, آپ کے لیے ایک تحفہ آیا ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. اور یہ تحفہ کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہی اپنے ہاتھوں سے دکھائیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈائری ہے اور اس ڈائری میں کیا ہے یہ آپ بتائیں گے. کیا بات ہے, شروع ہو گیا ڈائریوں کا سلسلہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک لکھے ہوئے ہیں اور کمال یہ ہے کہ بڑے پیارے انداز میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیں کہ پوری ڈائری ہزاروں, ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں درود پاک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ دیکھیں ناظرین کتنے پیارے درود پاک ہیں. اچھا ذرا دیکھیں, اس کو کیمرے کے قریب کریں جی, ذرا دکھائیں ناظرین کو کہ کتنے پیارے انداز سے, بہت کلرفل انداز میں نبی پاک پر درود پاک. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ الگ الگ سیغے ہیں درود پاک کے. تو سید صاحب یہ تحفہ انہوں نے بھجوایا. اچھا ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ اگر جو کوئی بندہ درود پاک لکھتا ہے
تو جب تک وہ درود پاک لکھا رہتا ہے اس کو اس کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں. جنہوں نے لکھا ہے ان کے لیے تو یہ صدقہ جاریہ ہو گیا ماشاءاللہ. فرسٹ پیج پہ انہوں نے لکھا ہے کہ کب انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے ہاں اور کب مکمل کیا. 21/2/2025 کو لکھا ہے اور 12/10 یعنی 8 مہینوں میں انہوں نے یہ لکھا ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے حدیث بھی لکھ دی ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. تو بھائی جنہوں نے لکھا انہوں نے تو وارے نیارے اپنے کر دی اور آپ کا تحفہ کا بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں یہ تحفہ میں کسی کو دے دوں. کس کو تحفہ دوں؟ سبحان اللہ. روزانہ سب سے زیادہ آپ میں سے درود پاک کون پڑھتا ہے؟ چلے یہ مقابلہ کر لیتے ہیں. کوئی ایسا ہو جو بتائے کتنی بار اندازہ آپ پڑھتے ہیں؟ سارے سچائی بتائیں گے. اچھا یا ٹیم میں سے بھی کوئی چاہے تو بتا سکتے ہیں کتنے درود پاک پڑھتے ہیں آپ روزانہ؟ کم و بیش 2000 بار پڑھ لیتے ہیں. ارے واہ بھائی. ہاں بھائی 2000 سے زیادہ والا کوئی ہے؟ روزانہ 2000 سے زیادہ والا جی کتنے پڑھتے ہیں؟ 6300 روزانہ پڑھتے ہیں. اللہ کیا بات ہے یار. دعوت اسلامی میں اب ان کی ذہنی آزمائش بھی چل رہی ہے. 6300 سے زیادہ والا بھی کوئی ہے؟ جی 12000 روزانہ پڑھتے ہیں. یعنی آج پڑھیں صرف یا پڑھتے ہیں روزانہ؟ روز 12000. 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے کہہ رہا ہوں. 1 لاکھ ہو گئے پچھلے دنوں کے اندر. ایک ہفتے میں 1 لاکھ درود پاک پڑھ چکے آپ. ہائے 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 کیسے ماشاءاللہ. اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی درود پاک پڑھنے والا بنا دے. یہ ہے میری دعوت اسلامی اور یہ امیر اہل سنت کا فیضان. یہ نوجوان بری باتوں سے بچ کر اس عمر میں درود پاک کی ایسی کثرت کرتے ہیں. یار میرا خیال ہے آپ ڈیزرو کرتے. میں تو آپ سب سے بڑا خوش ہو گیا ماشاءاللہ. سب نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ سے کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. یہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دو روٹی میں آ جائیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ کہ ایسی درود پاک کی لگن اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظرین پلیز یہ وظیفہ اپنا لیجئے. یہ غموں کو دور کرنے والا, مصیبتوں کو دور کرنے والا, مدینے لے جانے والا, عشق رسول بڑھانے والا, دیدار رسول کروانے والا وظیفہ ہے. آج سے سب نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی اپنے نیک اعمال کے رسائل نکال لیجئے اور جن کے پاس رسائل نہیں ہیں موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں. نمبر 1 اچھی نیتیں کی. 5 نمازیں با جماعت ادا کی. ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی. رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص پڑھی. کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے یا سنے. شجرے کے اوراد پڑھے. 313 بار درود شریف پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. غصے کا علاج کیا. اپنا جائزہ کیا. اپنے نگران کی اطاعت کی. آپ اور جی کہہ کر بات کی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے. 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے. فجر کے لیے جگایا. دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. گھر درس ہوا. مسجد درس دیا یا سنا. سنت کے مطابق لباس پہنا. زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے. 1 مشت داڑھی ہے. گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. سنت کے مطابق کھانا کھایا. مسلمانوں کو سلام کیا. کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. اوابین یا اشراق چاش پڑھی. عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی. 12 دینی کاموں میں سے ایک کام کی ترغیب دلائی. دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی. جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے. کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. ذاتی دوستی تو نہیں کی. وقت پر قرض ادا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے. صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی. کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی. چوک درس دیا یا سنا. والدین اور پیر و مرشید کو اصال ثواب کیا. اسراف سے بچے. ٹریفک قوانین کی پابندی کی. تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا. زبان کے گناہوں سے بچے. فضول باتوں سے بچے. مذاق, مسخری, طنز, ذیل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے. امامہ شریف باندھا. ماں باپ کا ادب کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ نعت شریف میں سب شامل ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد
साथ काफिला कशो हश से हमें उठाए क्यों सोते हैं उनके साए सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगा क्यों सुन ले अला नबी सल्ले अला तू को जामन को जा तू को जामन को जा आका तू जामन को जा तू को जामन को जा भटकी हुई प्यास हो तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा आका तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा मेरा घर सांस तो निचोड़े मेरा तेरी रहमत मगर
کا سائے ساتھ ہو تیری خیرات ہو کا سائے ساتھ ہو تیری خیرات ہو کا سائے ساتھ ہو تیری خیرات ہو تو سخی میں گدا تو سخی میں گدا تو سخی میں گدا تو کجا کجا خوش قسمتی ہے تیرا میری خوش قسمتی ہے تیرا میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی ہے تیرا امتی تو جزا میری تو جزا میری تو جزا میری کجا 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 دستار باندھے ہوئے کعبۂ عشق تو میں تیرے چار سو کعبۂ عشق تو میں تیرے چار سو تو اصل میں دعا تو کجا کجا جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کجا کجا تو کجا کجا سبحان اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں ہانی اتاریہ بنت بلال مجری جرمنی سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے, ہم شوق سے دیکھتے ہیں. میرا لاہور کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ اللہ کریم نے کس نبی علیہ السلام کو کس جگہ پر چپل اتارنے کا حکم فرمایا تھا؟ کیا بات ہے, اب تو ڈائریکٹ ٹیم سے بھی سوال آنا شروع ہو گئے بھائی. بلال بھائی کی بننی ہے نا, کیا بات ہے. جی بتائیں گے کس نبی علیہ السلام کو چپل اتارنے کا حکم دیا؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. سبحان اللہ, جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر موسیٰ علیہ السلام. جی ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. حاجی عبدالحبیب صاحب
बहुत आपको मुबारक हो, आपकी टीम को, जो ज़हनी आज़माइश की टीम है सारी, हम सब की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, और जो मेरे साथ बैठ के देख रहे हैं, इन सब की तरफ से मुबारक पेश करना चाहेंगे। मेरे दोस्त जो कई सालों से ज़हनी आज़माइश देख रहे हैं, पूरा साल इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये मालूमाती प्रोग्राम होता है, दिलचस्पी होता है। अल्लाह आपको और आपके तमाम दोस्तों को भी सलामत रखे। जहाँ से भी आपने कॉल की है, दावत इस्लामी के मरकज़ में होने वाले इज्तिमात में ज़रूर शिरकत किया करें। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अली रज़ा तारी है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ये भी सेगमेंट होना चाहिए, खानदानी रिश्ते। खानदानी रिश्ते का जो है वो सैयद साहब बैठे हैं, सैयद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। सैयद भाई मजलिस भी नोट कर ले, और हो सकता है कि रिश्ते, ये खानदानी रिश्ते सेगमेंट जल्द आ जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त हुआ है, हम बच्चों से कुछ हदीस की वीडियोस मंगवाते हैं ताकि इस बहाने हदीस पाक याद भी हो जाए। तो उम्मीद है कि वीडियोस आ गई होंगी। आइए वीडियोस देखते हैं और फिर आपको आज की हदीस बताएंगे जो आपने नोट करनी है, और कल प्रोग्राम से पहले हमें उसकी वीडियोस भेजनी है। आइए देखते हैं आज की हदीस। मेरा नाम मोहम्मद रमजान रजा है, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुमको मुझसे वो निस्बत है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुमको मुझसे वो निस्बत है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी हदीस थी। आज की हदीस भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नोट कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का निज़ाम हुकूमत उनके अंबिया किराम अलैहिस्सलाम चलाते थे। जब भी एक नबी जाता तो उसके बाद दूसरा नबी आता था, और बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जरा गौर तो करें कितनी हदीसें हैं खत्म नबूवत के हवाले से। जब याद कर लीजिए, इस हदीस की पिक्चर ले लीजिए, और कल इसकी वीडियोस बना के आज रात तो और कल दोपहर तक भिजवा दें, तो इंशाल्लाह सेलेक्टेड वीडियोस चलाई जाएंगी। आइए नाजरीन, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं और मुकाबले को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। स्वात या लाहौर, कौन सी टीम आज आगे जा रही है? जी जनाब, 27 नंबर है स्वात वालों के, 28 नंबर है लाहौर वालों के। अब चलेंगे सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। सवाल करेंगे स्वात वालों से, ईमान वालों को प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजने के मुतालिक कुरान क्या फरमाता है। बड़ी मशहूर आयत और उसका तर्जमा सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। जवाब दुरुस्त कर दे दिया है। मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाहौर वालों से सवाल है, ईमान वालों को तकवा इख्तियार करने, सच्ची और हक बात कहने के मुतालिक अल्लाह का प्यारा कलाम कुरान क्या इरशाद फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्वात वालों से अब सवाल करेंगे, मगर कुछ पिक्चर दिखाएंगे। कौन सा कुरान का वाकया है और कहाँ है ये कुरान पाक में, बताइए। 5000 भी लिखा है और किसी मैदान की तस्वीर भी है। क्या मुराद है इससे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तस्वीर में जिस वाक़े को इशारा हुआ है ये जंग बदर का वाक़या है जिसमें 5000 फरिश्ते नाजिल हुए थे, और ये वाक़या सूरह आला इमरान पारा नंबर 4 में जिक्र हुआ है। जंगे बदर का वाकया जब मुसलमानों की मदद के लिए 313 ईमान वाले थे, सामने कुफार की तादाद ज्यादा थी, 5000 फरिश्तों की जरिए मदद की गई। जंगे बदर में यह वाकया कुरान पाक के पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है लाहौर वालों की, बताइए कौन सा वाकया है ये? 70,000 और 7 कुछ कब्रें नजर आ रही है। 70,000 फरिश्ते और 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए। पारा नंबर 2 सूरह बकरा। किस नबी अलैहिस्सलाम के ये दौर का वाकया है? हज़रत सैयदना हिज़कील हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का बड़ा ही हैरान कुन वाकया। 70,000 लोग मर गए, फिर अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुए। ये वाकया कुरान में पारा नंबर 2 सूरह बकरा में है। और इस वाकये से सबक ये मिलता है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता। जिस लम्हे जिस मकाम पर मौत आनी है वो आनी है। अल्लाह हमें अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, कुरान पाक के खूबसूरत सबक आमोज वाकयात पढ़ने और समझने के लिए मकतबतुल मदीना की किताब अजायबुल कुरान गरायबुल कुरान हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से। मुख्तलिफ ज़बानों में इसका ट्रांसलेट भी हो चुका है। आप चाहे तो दावत-इस्लामी.net से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मदनी चैनल के कुछ सिलसिले हैं जिसमें कुरान पाक के वाकयात को बयान किया गया, जिनमें से एक किस्सा है कुरान से और पैगाम कुरान। अगर आप सर्च करेंगे आपको सोशल मीडिया पे वो मिल जाएगा। वक्त हुआ है नाजरीन आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने का, क्योंकि यही सेगमेंट फैसला करेगा दोनों टीमों से कौन सी टीम आगे जा रही है। मगर उससे पहले अपना स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। 31 स्वात, 32 लाहौर। आखिरी सेगमेंट शुरू करने से पहले कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद वासा तारिया माजिला रीमिया खान से अर्ज कर रहा हूँ। हम सब घर वाले जाने तुम्हारे प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह ताला अब्दुल्ला बी भाई को नजर बद से बचाए। माशाल्लाह। चले, आपकी दुआओं का शुक्रिया। आखिरी सेगमेंट जो फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी पीछे रह जाएगी। और आज सेगमेंट का नाम क्या है? सफर है। रहमतुल्लाह भाई यहाँ आ जाएं और यहाँ से इस्लाम भाई यहाँ आ जाएं। जनाब, स्वात वाले लाहौर और लाहौर वाले स्वात टीमों में एक एक इस्लाम भाई यहाँ जाएंगे, क्योंकि मशवरे की गुंजाइश नहीं है। सफर है मगर अकेले। आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है। शाह हुसैन साहब, आपकी बारी है। इमाम शाफई हम्बलियों के इमाम हैं। गलत। शबे बैराज शाबान की 15 तारीख को होती है। सही। कुरान में हजरत अबू बकर रदियल्लाहु तआला को उलुल फजल फरमाया गया। सही। मशहूर किताब बहार शरीयत फिक्र के मौजू पर है। सही। मस्जिद आयशा मदीने में है। सही। जनाब, गलतियां हुई हैं आपसे, और कितनी गलतियां हुई हैं? 2 गलतियां कर ली हैं। मस्जिद आयशा मदीने में नहीं बल्कि मक्के में है। और शबे मेराज 15 शाबान को नहीं जनाब, 27 रजब को होती है। जनाब, बारी है उसामा की। लाहौर से ताल्लुक है। तयम्मुम में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज़ दाऊद के 4 हुरूफ हैं। सही। मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा आला हज़रत के चचा हैं। गलत। जंग में हजरत बाबा बुल्ले शाह का मजार है। गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। सही। जनाब, उसामा ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है रिहान खान फ्रॉम स्वात। तफसीर जलालैन इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। गलत। सूरह नमल 19वें पारे में है। गलत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सही। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। सही। घर में अगर कोई ना हो तो दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहें। सही। जनाब, आपने भी काफी गलतियां की हैं और शुरू के 3 सवाल के आपने गलत जवाब दिए हैं। अब बारी है उमैर की, लाहौर से ताल्लुक। इमाम आजम अबू हनीफा के मशहूर कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा है। गलत। नमाज के 7 शराइत हैं। गलत। सूरह आले इमरान कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। नूर वाला आया है, कलाम आला हजरत का है। गलत। पानी पीने के बाद आखिर में यरहमुकल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। जनाब, ये भी गलती था। 4 गलत आपने सही कहे थे, 1 गलती की है। 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं और जिनका ताल्लुक नेमतुल्लाह स्वात से। अब तक तो नेमतुल्लाह ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। अब बारी है
हजरत अस्मा बिनते यजीद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु तआला की बेटी हैं। गलत। सीधे हाथ से खाना सुन्नत है। सही। मुस्नद इमाम आजम किताब इमाम आजम ने नहीं लिखी। गलत। खड़ी हरकत को एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। सही। सूरह बकरा चौथे पारे में मुकम्मल होती है। गलत। जनाब एक गलती आप कर गए हैं, 4 नंबर हासिल किए हैं। अब लाहौर के बिलाल की बारी है। जनाब लाहौर के बिलाल भाई, हजरत सुल्तान बाहू का मजार मुबारक मुल्तान में है। गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान 25 सफर शरीफ को पैदा हुए। गलत। शाबानुल मुअज्जम 8वां महीना है। गलत। सूरह जिन 30वें पारे में है। गलत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी। सही। जनाब एक गलती आपसे हुई है, शाबान 8वां ही महीना है, लेकिन जनाब आज का मुकाबला लाहौर वाले जीत गए हैं। अच्छा मुकाबला किया स्वात वालों ने। एक वक्त तो ऐसा लगा कि स्वात की टीम लगता है कल जिस तरह बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद वालों को पीछे छोड़ा, आज स्वात वाले आगे बढ़ जाएंगे। मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। स्वात के इस्लाम में दिल छोटा ना करें, आपको मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आएं, अच्छी तैयारी करके दोबारा आइएगा, फिर इंशाअल्लाह क्या मालूम स्वात की टीम आगे बढ़ जाए और हमारे अगले मुकाबलों में पहुंचे। नाज़रीन एक बार स्कोर बोर्ड आपको दिखाएंगे कि किस तरह मुकाबला चलते चलते लाहौर वाले आगे निकल गए। जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ भी जाएंगे और हम हमारी डिजिटल कुरानदाजी है, अगर वो रेडी हो तो बताइएगा, हम उसकी तरफ भी जाएंगे और नाजरीन को इंशाअल्लाह बताएंगे। आज का जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं, जो आपने कल जवाब शुरू होने से पहले, सिलसिला शुरू होने से पहले देना है, 4 पुश्तों के सहाबी रदी अल्लाह तआला का नाम बताएं। 4 पुश्तों के सहाबी रदी अल्लाह तआला का नाम बताएं। जनाब ये आपने मैसेज करना है। आतिफ भाई कुरानदाजी के लिए आ गया नाम वगैरह? जी बताइए, जो सवाल किया गया था उसकी। सवाल ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु का नाम क्या था? तो दुरुस्त जवाब है अली औसत बिनते बिलाल अत्तारी डेरा इस्माइल खान, गुलाम मुर्तज़ा विहाड़ी बिनते नवाज अत्तारिया चनियोट, अकरम शाह अत्तारी खारादर कराची, मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी आरिफ वाला बिनते फरीद अत्तारिया कराची, बिनते गुलाम फरीद अत्तारिया फतेह जंग, बिनते मोहम्मद रमज़ान अत्तारिया सरगोदा, बिनते अजहर अत्तारिया इस्लामाबाद, हुसैन हैदराबाद, अखलाक अत्तारी मीरपुर माथलो, मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी बिन मुश्ताक अहमद शेखुपुरा। आज जिनका कुर्रा में नाम निकला है बिनते मोहम्मद रमज़ान अत्तारिया सरगोदा। माशाअल्लाह। चलिए जनाब आज के बेस्ट परफॉर्मेंस का जो हम अवार्ड दे रहे हैं हमारे उमैर को दे रहे हैं। माशाअल्लाह बिलाल जो लाहौर से है, माशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वैसे लाहौर की सारी टीम और स्वात की सारी टीम बड़ी कमाल की है। अच्छा जनाब अब बारी है स्कोर बोर्ड देख लेते हैं पहले, फिर अब डिजिटल कुरानदाजी की तरफ चलेंगे। जी 40 नंबर स्वात, 45 नंबर लाहौर वालों ने हासिल किए। डिजिटल कुरानदाजी की तरफ चलते हैं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आइए देखते हैं किसका जवाब दुरुस्त है और किसको आईडी, कौन सी आईडीज को इनाम मिल रहा। सही जवाब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम था। और अब 5 आईडीज नोट कीजिए जिनको आज तोहफा जाएगा। इस ऊपर वाले नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए इस स्क्रीनशॉट को आपकी आईडी के साथ, तो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। जनाब मारिफतुल कुरान एक खूबसूरत तोहफा हर सिलसिले में हम देते हैं। आज किसको चाहिए? चले फिर कुरानदाजी कर लेते हैं। आप में से किसी के नाम हो सकता है निकल आए, कुरानदाजी के जरिए आज इंशाल्लाह देंगे। जनाब नंबर भी बड़ा प्यारा है, 5 5 फिर 5 0 550 550 वाले भाई मौजूद हैं तो आ जाएं, वरना फिर हम दोबारा पर्ची निकालेंगे। 5550 5550 वाले भाई मौजूद हैं? नहीं है, चले दोबारा कर ले भाई। अब वो बेचारे बाद में हो सकता है वजू वगैरह करे चले गए हो। चले जरा अब देखें किसका नंबर निकलेगा। 5554 554। कमाल हो गया, ये लगता है 7-7 आए थे। 5550 5554। अब अगर तीसरा नहीं निकला ना तो फिर मैं ले जाऊंगा फिर ये कर। चले जनाब 5494। माशाल्लाह आ गए भाई, आ गए माशाल्लाह, आ जाए। चले अब कल मुकाबला किसका किसके साथ है आइए आपको बताते हैं। पेशावर का मुकाबला है चिश्तिया से, एक और खैबर पख्तूनख्वा की टीम है। पेशावर और चिश्तिया के दरमियान कल मुकाबला होगा। बच्चों की कुरानदाजी भी हो गई है। 5549 बच्चों में अगर मौजूद है तो आ जाए भाई, छोटे मियाँ आ जाएं और ये भी तोहफा ले लें। ये लीजिए। चले जनाब माशाल्लाह। क्या करते हैं आप?
जामियत उल-मदीना में पढ़ते हैं माशाल्लाह। देखिए तालिब इल्म तक तोहफा जा रहा है माशाल्लाह। कुरान पाक पढ़े, बरकतें लूटें। आ जाए छोटे मुन्ने, आप भी ले लें माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए वक्त हुआ है नाज़रीन, अदब और शौक के साथ सलात व सलाम में शामिल हो जाए। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, बेसहारे सलाम कहते जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम आता है। जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम आता है। लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, हम के मारे सलाम कहते। और सुए हरम है सीने में, अब तो बुलवा ये मदीना में। आरज़ू हरम है सीने में, आका जान अब तो बुलवा ये मदीना। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। एक बार फिर दिखा दो आका, जल्द सबको मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान, दो घड़ी का याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। आरज़ू हरम है सीने में, आका अब तो बुलवा मदीने में। आरज़ूए हरम है सीने में, अब तो बुलवा ये मदीने में। जो मुझे आ नहीं सकते वो बेचारे सलाम कहते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह SMS के जरिए किसी का तोहफा निकला है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ठीक है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। नेमत भाई बहुत अच्छा आपने सिलसिला किया, अच्छी तैयारी करके आए। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश, आ गया। अल इल्मु नूर